Hello students, how are you? My name is Birbal Sharma, lecturer physics, PCCP Resonance Kota. So today we will start lecture 8 of light. Lecture 8, light, L8. Okay, so first topic is that is silvering of lens. When one surface of lens is silver, then it will behave just like a mirror. When one surface of a lens is silvered, then it will behave as mirror. For example, देखिए, it is a lens. Which lens? It is convex lens. This surface is silvered. Okay, it is focal length f(L). At the focal length of f of mirror, then the focal length of combination. Focal length of combination is f. That is 1 upon f is 1 upon Fm minus 2 upon Fl. Why it is 2? First of all, suppose object is here, then first of all light will fall on lens, so there will be refraction. After that it will strike the mirror, so there will be reflection. Then again it will come back, it will again refract from the lens. So lens is used 2 times. So it will be the, if f is negative, then mirror will be concave. This combination will be have as mirror, and f is positive, then mirror will be have as convex. Okay, अब देखिए क्वेश्चन देखिए इसका नंबर 1 देखिए. At the lens radius r is 20 centimeter, its focal length is f is equals to 20 centimeter, means focal length of lens is 20 centimeter. ROC radius of curvature is 20 centimeter. One side is silvered, one surface is silvered. Okay, if an object is placed at a distance 10 centimeter from combination, then where will be the image formed? Okay, now solution देखिए जरा इसका क्या होगा. The FL is how much? 20 centimeter, and f of mirror is minus r by 2. R is 20, that is 20 by 2, that is how much? Minus 10 centimeter. It is silvered. Object is placed here at 10 centimeter. Okay, it is FL. It is f of m. Both are given. So what is focal length of combination? That's f. Formula है 1 upon f is 1 upon fm minus 2 upon fl. Why it is 2 times? Because there will be 2 times refraction from the lens. So 1 upon f will be fm 10, it is given minus 10. Okay, minus 2 upon 20
that minus 1 upon 10 minus 1 upon 10, that is minus 2 by 10. So what is the f? Minus 5 centimeter. Minus sign shows that we have concave. Concave mirror की तरह behave करेगा. Negative sign shows it will be have as concave mirror whose focal length is 5 centimeter. Now think about it. Object is placed at a distance 10 centimeter. अब देखिए, it is the combination. Focal length is f minus 5 centimeter. It means it will be focus. Here is C. C is 10 centimeter. Here is object. So you know very well, when object is placed at the center of curvature, then the image will be real, inverted, and that of same size. So image will be at C, real, inverted, and of same size. Is it clear? Okay. तो आगे देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस. रिफ्रैक्शन थ्रू spherical surface. This surface may be concave or convex. Formula for both will be same. चलिए फिगर बनाते हैं. It is a surface. Okay. Here is clear. Here is the principal axis. Object is placed here. O. Object. It is the optical center, that is O dash. This distance will be U. Is it clear? इसका refractive index है surrounding का mu1. इसका refractive index है that is mu2. Okay? It is any other medium that is denser medium. चलिए image form करते हैं. Ray falls on at this point L. Okay. If we connect, then the C will be here, a center of curvature, then this distance will be R. Okay. Now if we connect this L to C, it will be a normal. So this angle will be I. Is it clear? Because light is moving from rare to denser, so it will bend towards the normal. Here will be the image. So this angle is R, or this distance will be how much? V. Is it clear? Figure. Clear है ना? Suppose it is alpha, it is beta, and it is gamma. Angle मान लिया मैंने. Okay. We can write what is mu. Because of mu is equals to sin I upon sin of R. Is it clear? Mu, अगर ये air है then that is equals to 1, और ये कोई medium है तो mu लिख सकता हूँ only. तो we can write mu is equals to sin I upon sin R. If I and R is small, तो याद रखना I sin I will be tan I, that is simply I, and sin R will be tan R, that will be only R. So we can write it mu is equals to I upon R, और क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो व्हाट द वैल्यू ऑफ I? mu into it is नंबर 1 लिख लेता हूँ उसको, नंबर 1. Is it clear or not? Okay. Now think about this. ये मैं अप्रोक्सीमेट कर्व है, ये स्ट्रेट लाइन मान सकता हूं. दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट विल बी सेम. O dash L. Clear? Now think about in the triangle
O L and O dash, O L और I लिखिए, O L I. The triangle O L I will be the I. Think about it. I is equals to alpha plus beta. The triangle is a straight line. So O L and C, O L C. It is I is exterior angle. Is it clear or not? O L and C इस ट्राइंगल में लिया है, O L C it is straight line triangle normal. तो अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा. ए नंबर 2. अब देखिए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल सेकंड वाला देखिए एल सी आई, बीटा इज एक्सटीरियर एंगल, is exterior angle. So exterior angle will be equal to the sum of two interior angles. बीटा का होगा r plus gamma. तो बीटा will be equal to r plus gamma. So what is the value of r? Beta minus number third. Is it clear? Okay. Now put the value of ir in 1. तो from 1 ये वैल्यू I और R की यहां रख दूं. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I इज अल्फा प्लस बीटा. इट क्लियर? दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R? बीटा माइनस गामा. ओके, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू म्यू बीटा माइनस म्यू गामा. इज इट क्लियर? चलो बीटा को उधर ट्रांसफर कर दीजिए. तो अल्फा म्यू गामा प्लस अल्फा दैट इज टू म्यू माइनस 1 इंटू. इज इट क्लियर? चलिए ऊपर लिख देते हैं, यहां लिखते हैं. आप देखिए दैट इज म्यू गामा प्लस अल्फा दैट इज इक्वल टू बीटा इंटू म्यू माइनस 1. ये है नंबर 4. अब वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा फ्रॉम द फिगर. तो देखिए अल्फा बीटा एंड गामा आर स्मॉल, सो अल्फा विल बी इक्वल टू tan ऑफ अल्फा. अब देखिए किस ट्राइंगल में अल्फा? O L O डैश. ओके, एंड बीटा इज इक्वल टू tan बीटा एंड गामा इज इक्वल टू tan गामा. लिख सकता हूं ये अल्फा बीटा आर स्मॉल. सो इन ट्राइंगल O dash L, what is the alpha? Tan alpha, that is equals to alpha is equal to tan alpha. O dash L divided by U, O dash L divided by U. Is it clear? देखो इन ट्राइंगल बीटा लेना है मुझे. O dash L C, O dash L C बीटा is equals to tan beta. That is how much? Tan beta is equals to O dash L divided by R. O dash L divided by, is it clear? और इन ट्राइंगल थर्ड वाला, ये वाला ट्राइंगल O dash L I, O dash L and I. Okay, that is gamma is the tan of gamma, that is equals to O dash L divided by V. Is it clear? We have to put the value of alpha, beta, gamma in 4. So on putting the value of alpha, beta and gamma, on putting the values of alpha, beta and gamma in equation, that is 4. क्या होगा देखिए 4. ये म्यू इंटू गामा, तो म्यू इंटू गामा की वैल्यू O डैश L डिवाइडेड बाई V. इज इट क्लियर? ओके, दैट इज टू बीटा प्लस अल्फा की वैल्यू है O डैश L डिवाइडेड बाई U इज बीटा, बीटा इज O डैश L डिवाइडेड बाई R इंटू म्यू माइनस 1. अब देखिए ये O डैश कैंसिल, ये और ये कैंसिल, क्या बच रहा है मेरे पास? म्यू अपॉन V
प्लस 1 अपॉन यू, दैट इज म्यू माइनस 1 अपॉन आर। अब थोड़ा फिगर पे देखिए जरा, ऑब्जेक्ट इज रियल सो यू विल बी नेगेटिव, कैसा, यू इज नेगेटिव एंड ऑल द डिस्टेंसेस टुवर्ड्स साइड यू विल बी नेगेटिव एंड टुवर्ड्स राइट विल बी पॉजिटिव, सो वी विल बी पॉजिटिव एंड आर विल बी, अगर ये वैल्यूज पुट कर दें तो क्या आएगा, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज म्यू माइनस 1 अपॉन आर। इट्स द फॉर्मूला फॉर रिफ्रैक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम इसको थोड़ा चेंज कर सकते हैं, शायद याद होगा आपको, फॉर एग्जाम्पल म्यू जी डब्ल्यू, ये था म्यू जी बाई कितना था, म्यू डब्ल्यू। इट एब्सोल्यूट आ रहा है, इट इज रिलेटिव आ रहा है, तो मैं लिख सकता हूं दैट इज म्यू 1 एंड म्यू 2, तो वी कैन राइट इट म्यू बिकॉज ऑफ म्यू इज इक्वल हो गया म्यू 2 बाई म्यू 1, तो वी कैन राइट हियर म्यू 2 बाई म्यू 1 इंटू वी माइनस 1 अपॉन यू इज म्यू 2 अपॉन म्यू 1 माइनस 1 अपॉन होल डिवाइडेड बाई आर। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं ऑन मल्टीप्लाइंग बाई म्यू 1 तो क्या आएगा, म्यू 2 अपॉन वी माइनस म्यू 1 अपॉन यू, दैट इज म्यू 2 माइनस म्यू 1 डिवाइडेड बाई आर। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब याद रखना, जहां पर भी ऑब्जेक्ट है, जब यूज करूंगा जहां ऑब्जेक्ट है, दैट मीडियम विल बी म्यू 1। देखिए म्यू 1 इज द आर आई ऑफ दैट मीडियम इन विच ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, वो होगा म्यू 1, रेस्ट वाला म्यू 2 होगा। इज इट क्लियर? ये वाला है फाइनल फॉर्मूला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर? अब एक क्वेश्चन लेते हैं, वन क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। ओके, द रेडियस ऑफ ए सॉलिड glass mu w is 3/2, sphere is 30 centimeter. Okay, there is an air bubble at a distance 10 centimeter from center of sphere as shown in figure. If it is viewed from right, then where will be the image? ओके, चलिए देखिए, और ये वाला स्फीयर है, ये सेंटर, ये बबल, ये 10 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है इसका 30 cm, आर इज कस्ट, यहां से व्यू कर रहा हूं। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखिए क्या आएगा इसका। चलिए फिगर बनाते हैं फिर से। इट द स्फीयर, ओके, इट इज सेंटर, इट सेंटर सी, इट द एयर बबल ओ, ये है एयर बबल, इट 10 सेंटीमीटर, इट इज 10। ओके, इट्स रेडियस कितना इसका, आर इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। यहां से इट विल बी ऑप्टिकल सेंटर,
ऑप्टिकल, यहां से देख रहा हूं मैं, याद रखना ऑल द डिस्टेंसेज आर मेजर्ड फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर, दैट्स ओ डैश. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u विल बी, ये होगा u, इधर है u इज रियल, सो दैट इक्वल टू माइनस पूरा 30, ये 10, दैट इज माइनस 20 सेंटीमीटर. ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड हियर, इसका म्यू है 3/2, इट इज म्यू1, सो म्यू1 इज इक्वल टू 3/2 एंड म्यू2 बाहर का होगा, दैट्स 1, इट इज म्यू2 इज इक्वल टू 1. इज इट क्लियर? एंड r, याद रखना r यहां से मेजर करूंगा, इधर आएगा r लेफ्ट में टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट, तो माइनस 30 सेंटीमीटर. वी कैन फाइंड v, फॉर्मूला इज म्यू2 अपॉन v minus mu1 upon u is mu2 minus mu1 upon r. We put the values. Values put कीजिए, क्या आएगा? mu2 is, it is mu2 is 1, clear? mu1 is 3/2, that is mu1 होगा, लिखा है mu1. mu1 is 3/2, mu2 is 1 upon v minus mu1 is 3/2 whole divided by minus 20 u is equals to mu2 means, so that is 1 minus 3/2 whole divided by r की वैल्यू minus 30. किधर आएगा देखते हैं, 1 upon v ए प्लस 3/40 दैट इक्वल टू, ये बचेगा माइनस का 0.5, माइनस का 0.5 डिवाइड बाई माइनस का 30, ये कैंसिल. तो अगर मैं इसको करूँ मल्टीप्लाइड बाई 10 दैट इज 60, 1 अपॉन वी इसको हो गया 1 अपॉन 60 माइनस 3/40. एलसीएम ले सकता हूँ मैं, कितना आएगा 120, 2 माइनस 3 3 9 दैट इज माइनस 7/120. सो वी विल बी इक्वल टू माइनस 120/7 सेंटीमीटर. देख ली कितना आ रहा है, अगर 140 होता 20 आता, 20 से लेस आ रहा है, इट मीन्स इमेज अप्रोक्सीमेट यहां बनेगा. ओके, माइनस साइन shows that object is, sorry, image is towards the side of object, toward the side of object from o dash. o dash से इधर बन रहा है, अब लेस आ रहा है 20 से, इसका मतलब इससे बीच बनेगा. वैसे मैं आइडिया लगा सकता हूं, देखिए क्या होगा. टेक एनी रे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये रे है ऐसे फॉलो हो रही एल पॉइंट पर. अगर मैं इस पॉइंट को सी से कनेक्ट कर दूं, इट विल बी द नॉर्मल, ये आई, ये नॉर्मल. ओके, क्लियर? अब बिकॉज लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, सो इट विल बैंड. अब ये नॉर्मल ऐसे जा रही थी ना, थोड़ी सी ऐसे बैंड हो जाएगी, इट इज आर. पीछे एक्सटेंड करूं तो ऐसा लगता है कि ये यहां से आ रही हो, हियर विल बी द इमेज. और ये डिस्टेंस आ रही है, कितनी आ रही है 120/7, ये आ रहा है 120/7. किसी से भी आइडिया लगा सकता हूं. इट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट. That question 3. In previous question, if the bubble is viewed from left, then where will be the new position? Will be the position of image. अब मैं राइट से नहीं देख रहा, तो देखिए क्या आएगा. अब इसको भूल जाओ, ऑप्टिकल सेंटर ही है. अब इधर से भी कर रहा हूं मैं, तो सॉल्यूशन देखिए जरा इसका. अब इसको रब करना है मुझे, ये फिगर से मतलब नहीं है. अगर यही बना रहेगा तो यू विल बी कंफ्यूज्ड. ओके, फिर से देखिए. अब ये है that sphere, solid sphere of glass, it is center, ये center C.
Okay, now object is placed here, it is 10. It is the object. Now viewed is from here. ये होगा ऑप्टिकल सेंटर. क्लियर? तो नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू? ये होगा यू. तो यू विल बी -40 सेंटीमीटर. याद रखना, ऑब्जेक्ट इज रियल देन यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव. पहले मैंने इधर माना था, इधर की नेगेटिव ले रहा, लेकिन ऑप्टिकल सेंटर ये है तो इधर यू है, तो इट इज -40 सेंटीमीटर. इट इज यू. ओके, आर भी इसका इधर ही आएगा. आर इज अगेन -30 सेंटीमीटर. क्लियर? μ1 ऑब्जेक्ट यही रखा हुआ है. इट इज μ1 इज इक्वल टू 3/2, μ2 इज इक्वल टू 1, μ1 इज इक्वल टू 3/2 and μ2 is equals to 1. Formula same, V is to be find. So μ2 upon V minus μ1 upon U, that is μ2 minus μ1 divided by R. Put the values up. That is 1 upon μ2, that is 1 upon V minus 3/2 divided by U is -40. μ2 1 minus 3/2 divided by minus सेम थिंग. क्या आ रहा देखिए, 1 अपॉन वी ये हुआ प्लस 3/80 इज टू -0.5 डिवाइड बाई -30. ये कैंसिल 1/60. 1 अपॉन वी इज टू 1/60. ये 2 टाइम कैंसिल होगा, 1/60 प्लस ये इधर जाएगा -3/80. एलसीएम आ रहा है 240. इज इट क्लियर? ये फॉर -9. ओके, 6 4 जा. ओके, तो नाउ सॉल्व इट. इट इज -5/240. इज इट क्लियर और नॉट? 3/180 और इट इज it is -30 minus or minus plus, that is -30 80 3/80. तो आइडिया लगा सकता हूँ कितना आएगा, देखो जरा. 1 अपॉन वी इज टू कितना आ रहा है 240 y5, that is how much 48 centimeter. It's clear? We can check it. It is -40. okay, it is minus आ रहा है. याद है हमने इधर माइनस लिया था, नॉट प्लस. यू इधर था, तो माइनस का मतलब 48. यहाँ तक 40 है अप्रोक्सीमेट, यहाँ आ रहा होगा. मैं चेक कर सकता हूँ. कैसे? टेक एनी रे फ्रॉम, यहाँ से कोई रे ले लीजिए. इट इज एल, यहाँ स्ट्राइक कर रही है, तो इट विल बी द नॉर्मल. सी से कनेक्ट कर दूँ, इट विल बी द नॉर्मल. ये नॉर्मल. लाइट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो ये ऐसे जा रही थी, थोड़ी इधर बैंड हो जाएगी, थोड़ी सी इधर बैंड होगी, और ऐसा लगता है कि ये यहाँ से आ रही हो. हियर विल बी द इमेज. और ये जो आ रहा है इट इज वी इज टू कितना आ रहा है 48 सेंटीमीटर. ओके, इट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस वन. नाउ वन मोर क्वेश्चन. Question 4. Okay, चलिए. Let the spherical surface. This spherical surface divided into 2 parts. 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, दैट इज म्यू इज 1.6, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है दैट्स 2.0. An object is placed here. इसका ROC है. ROC means radius of curvature, that is 1 meter. Here is object is placed here at a distance of 2 meter from optical center. Okay. Now from figure how many images are formed? कितनी इमेज बनेंगी?
ओके, ऑल्सो फाइंड द सेपरेशन बिटवीन द इमेजेस। अगर एक बन रही है तो डिस्टेंस फाइंड करना ही नहीं मुझे, अगर एक से ज़्यादा बन रही है तो यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इमेजेस। ओके, नाउ द सॉल्यूशन देखिए। द ऑब्जेक्ट इज द म्यू, 1 इज इक्वल टू म्यू, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है दैट्स 1, इट इज म्यू 2, ये भी म्यू 2 लूंगा मैं। ओके, तो क्या क्या गिवन है, गिवन देखिए u इज इक्वल टू हाउ मच, -2 सेंटीमीटर, और रेडियस याद रखना इधर आएगा इसका रेडियस, सेंटर ऑफ यहाँ होगा इसका c, इट इज 1 मीटर, सो r विल बी इक्वल टू +1 मीटर, मीटर है मीटर। ओके, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन एयर, सो μ1 इज 1 एंड μ2 इज इक्वल टू हो गया 1.6 फॉर मीडियम, दैट म्यू इज 1.6, पहला वाला पार्ट। इसके लिए ये इमेज कहाँ बनाएगा, μ2, तो फॉर्मूला वही है μ2 अपॉन v1 मान लूँ मैं इसको, क्यों दूसरा इमेज भी बनाना है, -1 अपॉन μ1 अपॉन u इज μ2 माइनस μ1 अपॉन r, तो μ2 इज 1.6 डिवाइडेड बाई v1 टू बी फाइंड, माइनस μ1 इज 1 अपॉन दैट्स -2, u की वैल्यू -2, दैट इज μ2 -1, μ2 माइनस μ1, और μ2 की वैल्यू है 1.6 -1 डिवाइडेड बाई r, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ r, +1, तो ये आ रहा है 1.6 डिवाइडेड बाई v1, ये प्लस होगा और उधर ट्रांसफर हुआ 1/2। ओके, ये 1.6 -1 दैट इज इक्वल टू +0.6, सॉल्व कर सकता हूँ मैं, 1.6 डिवाइड बाई v1 दैट विल इक्वल टू 1/2 प्लस 6/10 दैट इज 3/5, सॉल्व करूँ एलसीएम 10, 5 प्लस 6, 1/2 प्लस जाएगा माइनस, ओके ये माइनस प्लस आएगा, तो मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, कितना आएगा 1.6 प्लस v1 दैट इज 1/2, उधर ट्रांसफर होगा तो 1/2 माइनस का आएगा भाई, देखिए ये प्लस हुआ ना, इट इज प्लस, उधर जाएगा इट बिकम्स माइनस, प्लस 1.6 तो -1/2 प्लस 6/10 और दैट इज 3/5, तो 1.6 अपॉन v1 दैट विल इक्वल टू -1/2 प्लस 3/5, एलसीएम आ रहा है मेरा 10, 2 5 जा 10 दैट इज -5 और 5 2 या दैट इज प्लस का 6, 1/10। ओके, तो v1 इज इक्वल टू हो गया 16 मीटर, प्लस आ रहा है इसका मतलब टुवर्ड्स राइट, इधर होगा I1 हाउ मच, that is 16 meter, we can say it is v1 is equals to, अब think about this नीचे वाली सरफेस से। ओके, चलिए देखते हैं, फॉर मीडियम, फॉर सेकंड मीडियम दैट्स μ2 इज 2.0, सेम फॉर्मूला क्या आएगा, μ1 इज इक्वल टू 1, μ2 इज इक्वल टू 2 and u is equal to हो गया -2 सेंटीमीटर, इज इट क्लियर, एंड v is to be find, r will be equal to +1 and v2 is to be find, फॉर्मूला होगा μ2 अपॉन v के प्लेस पे v2 ले रहा हूँ, माइनस μ1 अपॉन u दैट्स μ2 माइनस μ1 अपॉन r। अब वैल्यूज सारी मालूम है, क्या मालूम है देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ μ2 इज 2 अपॉन v2, it is 2 upon v2, is clear, minus 1 upon -2 that equal to μ2 means 2 minus 1 divided by 1, तो ये बच का 1, ये हो गया 2/v2 that equal इधर जाएगा तो ये बचा 1 minus 1/2, it implies that 2 upon v2 is equal to 1/2, what is the value of v2, 4 meter, in which 2 images are formed, तो I2 बन रहा है मेरा
2 बनेगा, यहाँ पर it is I2, it is V2 is equals to how much? 4 meter. You have to find the separation between, separation, ये separation find करना है, you can find easily separation. तो result ये रहा, images, 2 images will form, okay, and separation between them is 16 minus 4, that is how much? 12 meter. Is it clear? It is the separation between the objects.